wish you a very good evening. I'm very privileged to be here today to be part of this function because it's a wonderful initiative, and I'd like to congratulate the City Group and Mr. Masood to take this initiative forward. We need more and more people like him who can really see the potential of sport in India and how much of this kind of support is needed for the budding players and the budding sports persons in India, who unfortunately, because of the lack of facilities, proper training, proper diet, are unable to reach international standards. And if we are looking for giving them that opportunity, and if we expect them to reach the level of international standards, we need to give them international facilities as well. And that's the need of the hour. I mean, we are a population of 1 billion people. We should be able to get at least one gold back in the Olympics. And hockey, being our national sport, has won us, I think, over 8 gold medals in the Olympics already. But that, unfortunately, has been our past glory. And we today need to resurrect that glory once again. And thanks to the initiative of City Group and Mr. Masood, I'm sure we'll be able to achieve this after this great initiative. I thank you all for inviting me here today for launching this program. And it's been a pleasure for me to be here. Thank you so much. मैं तहे दिल से मिथुन और उनके बेटे को मुबारकबाद देता हूं और दुआ करूंगा कि ये इनका म्यूज़िक कामयाब हो, इनकी फ़िल्म कामयाब हो और इनके बेटे का काम सारे ऑडियंस को पसंद आए। हर एक बेटे बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे का जो प्रोफेशन है वो चमके और वो आगे बढ़े। तो यकीनन इसके पीछे मिथुन ने शायद बहुत सारी उम्मीदें और मेहनत की होगी कि अपने बेटे को सही अंदाज से सही ब्रेक मिले। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि विश देम ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट लक एंड मे ही शाइन्स as much as his father has shown and been a great actor of our industry and is known for his dancing talent, and that's all I can say at the moment. But I just say I'm thrilled and excited and nervous and scared at the same time. Jimmy, it's two characters play करता हूँ. एक सुबह में I play a car engineer और रात को I play a DJ. So because I have to take ends meet for my mother, and that's why I work 2 times. And it's a very, even though he's pressurized by life, even though उसके life में बहुत tensions है, वो दिखा नहीं सकता. वो अपने गमों को छुपाता है और जो भी खुशियाँ है सब में बांटता है. और कैसे उसके लाइफ में ऐसे एक इवेंट आता है जो उसकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर लेता है. ये वही कहानी है जिमी की. मेरा बहुत ही बबली रोल है और something very close to me. I am a bubbly girl myself, and it is basically, this girl is very nice, sweet, and she loves her boyfriend, and she helps him whenever he's in trouble. Yeah. फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है. It's very Bollywood. It's something what we like to hear, youngsters especially. We've got 4 songs in the film, and they all are different from each other. We've got one disco song which is amazing, beautiful song, and I'm sure people would enjoy it in discos, and it'll run for long. There's one sad song for all the sad Romeos, and there's a lot. No, there are 2 more songs. One is a lovey-dovey song and one is a passionate song. आप लोगों को मालूम मेरा कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर ही नहीं है यार, बट उस फिल्म में कैरेक्टर है. एक सरदार की भूमिका कर रहा हूँ. एक कॉप है. You know, always Sardar ji is a very emotional, sensitive people. So I know what Jimmy is doing in this film. I know his activity in the film, and somewhere I find him a very good-hearted man. And where a situation arises where he's caught into so much of problems, I come and save him. जिमी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता because I'm not the producer. He's Nawaz Malik, Salman Manik, director is Rajan Sippy. So don't ask me about it.
Sir? डिस्को डांस Presentation is something different. Present is my blessings. सर डिस्को डांसर फिल्म में नहीं प्रोडक्ट के मैं आई थिंक स्टोरी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता. दैट इज नॉट माय प्रोटोकॉल. सर आपने कितने टिप्स दिए हैं मेमो को एक्टिंग में और डांसिंग में? मैं कुछ टिप्स नहीं दिए. मैंने बताया कि सी इज ए, अगर आप देखेंगे कि इज ए वेरी टॉल गाय, और जो लंबे लोग होते हैं वो पूरा पैर के ऊपर ऐसे डांस करते हैं जिसमें बहुत आवाज़ आती है. तो मैंने उसको पहले अपने टो के ऊपर डांस करना सिखाया. इफ़ यू कैन डांस ऑन योर टोज यू आर ए गुड डांसर. सो ही डिड इट. आपने उनको काम करते हुए देखा है तो कहीं आपकी झलक उनमें आती है? बिल्कुल नहीं. मैं उस दिन तो मैंने उनको बोला कि किसी को कॉपी नहीं करना भाई, नॉट इवन मी. और सर फिल्म का जो टाइटल है और ये जिमी जो मेरी पिक्चर से आया है, और ये दिन है सोहेल खान साहब की. सोहेल ने मुझे बताया दादा दिस इज अ ब्रांड नेम, यू कीप दिस नेम ऑफ द फिल्म. ये क्रेडिट मैं सोहेल को देना चाहता हूँ. और एज एन एक्टर मेमो के बारे में आप क्या कहते हैं? पास. पहली फिल्म के हिसाब से पास मार्क दे दिया हूँ. सर क्या एक्सपेक्टेशंस है इस फिल्म के साथ और मेमो के साथ? ये तो पब्लिक बताएगी, मैं नहीं बोल सकती. आपकी क्या आशा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? रियली आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल मैन. मैं कुछ नहीं बोल सकता. मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि जो पैसे देगाएंगे वो डिसाइड करें. According to you, what kind of an actor will he be? Will he be the dancing sensational or action-packed hero? Because he's got a little bit of both. We'd like to. I really can't say on these कि क्या ऑडियंस को क्या पसंद आए क्या नहीं आए. You have to. This is a process. You have to go through and learn. कि ये मेरे ख़राब है ये अच्छे हैं. सडनली आपकी मेरी 4 लोगों को पसंद है कि मैं साइड करके चलता हूँ. तो you never know किसको क्या पसंद आ जाए. नहीं भाई, एक तो आपको बता दूं, जहाँ तक कि जिमी का सवाल है, इट्स बेसिकली अ थ्रिलर. ठीक है. अब हमने कोशिश ये की है कि उसमें म्यूजिक भी आ जाए, एक्शन भी आ जाए, कंप्लीट पैकेज जिसे कहते हैं. ये बच्चे की पहली फिल्म है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम, क्योंकि मतलब हम एक टोटल पैकेज बनाएं. और जहाँ तक के लड़के का सवाल है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज दोबारा ये बात दोहराऊंगा, बाप से बेहतर डांस करता है, बाप से बेटर एक्टर है, और एक्शन बाप से भी बेहतर करता है. एंड दैट इज अ मेजर कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस किड बिकॉज मिठुन इज नो लेस. आई मीन द किड इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. कमाल का काम करता है ये लड़का. जी नहीं, बेसिकली मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्शन फिल्म है. एक्शन फिल्म में है बेसिकली थ्रिलर. जो जानर है उसका थ्रिलर है. अब रोमांटिक भी गाने हैं, और क्योंकि कैरेक्टर डीजे है फिल्म में, उसका प्रोफेशन जो है वो डीजे है. तो जैसे इंट्रोडक्शन गाना जो है वो ऑब्वियसली क्लब के अंदर इट्स लाइक एन आइटम सॉन्ग जहां ये लड़का इंट्रोड्यूस होता है. रोमांटिक गाने भी हैं. फिर एक बड़ा एग्रेसिव गाना है कि मतलब जहां दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है और ये थक गया है, हार गया है, और दुनिया से कह रहा है कि जमाने से कह दो ना हमको सताए. एक वो साइड एक गाना भी है. फिर एक इमोशनल गाना है. तो हमने कोशिश ये की है कि सारी मतलब बातें जो है वो अमालगमेट करके एक कंप्लीट पैकेज बनाए.